Good morning, all of you. I am Neeru Yadav, TGT Science teacher at Suraj School, Rewari. Today, we are going to discuss our chapter number 3. The name of our chapter is Synthetic Fibers and Plastics. First topic of our chapter is what are polymers? Polymers are long chain of molecules containing thousands of similar molecules called monomers. It means a polymer, here the meaning of polymer is poly means many and mer mean units. When a large number of units are combining to form a single unit, that is called polymer, and the large number of units here is monomers. It means जब बहुत सारे monomers आपस में combine होंगे क्या बनाने के लिए? Polymers बनाने के लिए. So here I am explaining this by giving a small example. Here these are some beads. It is known as मोती, जो हम माला बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो. तो यहाँ हमने कुछ मोती लिए हैं और जिससे हमने किसकी फॉर्मेशन की है? एक नेकलेस की फॉर्मेशन की है. तो यहाँ पे इस प्रोसेस में ये जो मोती हैं इनको हम कहेंगे मोनोमर्स और इस नेकलेस को हम कहेंगे पॉलीमर. कि जब ये बहुत सारी मोनोमर्स की यूनिट आपस में कंबाइन होंगी एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, और इस बड़ी यूनिट का नाम क्या होगा? पॉलीमर्स. तो व्हेन अ लार्ज chain of different monomers are combined to form a big polymer, this is called polymers. The next topic is what is polymerization? The process by which monomers are linked together to form polymers. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा था कि बहुत सारे मोनोमर्स ने आपस में मिलकर के एक बड़े नेकलेस की फॉर्मेशन की थी. ये सभी मोती जो हैं इस माला में पिरोए गए थे एक नेकलेस बनाने के लिए. तो ये जो प्रोसेस है मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनने तक का, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन. प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स. तो ये प्रोसेस क्या हुआ हमारा? पॉलीमराइजेशन. So our next topic is synthetic fibers. Synthetic fibers basically they are made up of polymers. Many of the polymers are obtained from petroleum. Synthetic fibers का मतलब क्या होता है कि the fibers which are formed by human beings, the fibers which are formed artificially by using the natural raw material. Some of the example of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester. Rayon is a fiber which is used to form different type of clothes, mats, house furnishing substances, curtains, etc. The property of rayon is it looks shiny. It have a shiny lustrous appearance. लाइक एज सिल्क. रेयन जो है वो सिल्क की तरह दिखाई देता है, जो शाइनी होता है दिखने में. नाइलॉन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर. सो नाइलॉन इज़ यूज टू फॉर्म द ropes. The fiber which are used in a rope, we can see they are very strong. Next is polyester. This is also a type of fiber which is used to form different type of cloth materials. Plastics. A material is said to be plastic if it can be molded into many different shapes. एक मटेरियल को हम प्लास्टिक कब कहेंगे? जब हम किसी मटेरियल को बहुत सारे शेप्स में क्या है डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सारे शेप्स में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है. सो प्लास्टिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स. थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है the plastic which is once it is molded it can be molded into many different shapes. जैसे कि हम एक बार किसी प्लास्टिक को बना लेंगे उसको हम मेल्ट करके दोबारा से किसी प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो प्लास्टिक एक बार मेल्ट होने के बाद भी दोबारा मेल्ट हो सकता है और दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है,
उस प्लास्टिक को हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सेटिंग मीन्स इसमें जो है प्लास्टिक वो सेट हो जाता है, उसको दोबारा से हम क्या है मेल्ट नहीं कर सकते हैं, दोबारा से वो प्लास्टिक से कोई दूसरी प्लास्टिक की मटेरियल बनाया नहीं जा सकता है। Here are some properties of plastic. Properties. First property of plastic is plastic are light in weight. उनका जो है weight हल्का होता है। Plastic are strong. Strong होते हैं। Inexpensive. It means वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। They can be made thin. उनको जितना हम बारीक बनाना चाहें उतना बारीक बना सकते हैं, और जितना हम उनको मोटा और टफ बनाना चाहें उतना ही उनको इस शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे कैन बी कलर्ड, प्लास्टिक जो है वो कलर्ड भी हो सकता है, और प्लास्टिक जो है ट्रांसपेरेंट, इट मीन्स पारदर्शी, जिसके आर पार जो हमें दिखाई दे। तो प्लास्टिक जो है कलर्ड भी हो सकता है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, कि वो प्लास्टिक जो है वो कभी भी डिग्रेड नहीं होते हैं, प्लास्टिक जो है कभी भी गलते नहीं हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से कभी भी मेन्योर में चेंज नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आर दे आर वाटर प्रूफ, प्लास्टिक जो है वाटर प्रूफ होते हैं, इन पे वाटर का कोई असर नहीं होता। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं दे आर इंसुलेटर ऑफ हीट, जिसके लिए प्लास्टिक का यूज़ जो है कुछ कुकिंग यूटेंशिल्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कुकर, द हैंडल ऑफ कुकर्स, द हैंडल्स ऑफ सम अदर यूटेंसिल्स, एंड द हैंडल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स द प्लास्टिक कैन बी यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रिक वायर्स, cords of electric appliances, and cables have a plastic coating. Next property is having no reaction with air and water. It means जो प्लास्टिक है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता है एयर और वाटर के साथ, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसीलिए प्लास्टिक का यूज़ जो है हम केमिकल्स डालने के लिए भी करते हैं, क्योंकि वो कभी भी हवा और पानी के साथ जो है रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, वो एज इट इज़ नेचर में रहते हैं। सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्लास्टिक्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं प्लास्टिक्स को लेकर के, जैसे प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इट मीन्स इट कैन नॉट बी डिग्रेड इनटू सॉइल। सेकंड इज नीड्स टू बी प्रॉपरली मैनेज, प्लास्टिक जो है उसको मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या है बहुत ही हार्म पहुँचाएंगे। टॉक्सिक फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, इट मीन्स अगर प्लास्टिक जो है हमारे पानी में एक्वेटिक पॉन्ड्स वगैरह में अगर डाल दिया जाए तो वो क्या है वहाँ पे टॉक्सिसिटी, एक जहरीला केमिकल सिक्रेट करता है, जिससे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो उनकी डेथ हो सकती है। चोक्स द ड्रेन्स, इट मीन्स प्लास्टिक कैन ब्लॉक द ड्रेन्स, प्लास्टिक जो है हमारी ड्रेन्स को, नालियों को ब्लॉक कर देता है, उसमें ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पानी जो है ठहर जाता है और वो पानी एक जगह से क्या है आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉस्किटोज, ये सब क्या है हमारी ड्रेन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 3। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।